Morning class 2. As there is lockdown, there is no regular classes for you. The teachers are sending online videos, and now on our new YouTube channel we are sending the recorded videos. Teachers अपनी language में record करके videos आपको भेज रही हैं. I hope आपको वो ठीक लग रहा होगा and you are understanding the context and chapters. पेरेंट्स ने कहा था कि मैम चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब वाले वीडियोस से. सो दिस इज़ द एफर्ट ऑफ द टीचर्स कोशिश कर रही हैं आपको समझाने के लिए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द सेंटेंस. इंग्लिश में आपकी ग्रामर में आपको एक्सरसाइजेज इससे दिए गए थे, बट एट दैट टाइम हम लोग ये वीडियो बना नहीं पाए थे. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर द सेंटेंस. Now tell me what is a sentence. जो भी हम बात करते हैं, चाहे हम इंग्लिश में बात करें, चाहे हम हिंदी में बात करें, whatever we talk, it is a sentence. जब हम अपनी बात दूसरे तक सही शब्दों में पहुंचा देते हैं, ठीक तरह से बोलकर. अब एक छोटा बेबी है, मम्मा मम्मा करता है, तो दैट इज नॉट अ सेंटेंस. लेकिन मम्मी उसकी बात समझ जाती है, वो एक और बात है, लेकिन that is not a sentence. But when we speak properly, word by word, arranged words, तब it becomes a sentence. For example, suppose this is a face. आपका face है, मेरा face है, whoever's. अगर मेरी आंखें कान की जगह लगा दी जाएं और कान मेरे आंखों की जगह लगा दिए जाए, and I put my nose in place of lips and lips I पुट ऑन द फोरहेड. ठीक है. और अगर मेरे सिर के बाल नीचे आ जाएं यहाँ पर और यहाँ पर मेरी गर्दन हो जाए, तो कैसा लगेगा? विल दिस बी कॉल्ड अ फेस? ये फेस कहलाएगा? नो ना, इट वोंट बी अ फेस. ये तो पता नहीं क्या बन जाएगा, भूत बन जाएंगे हम, है ना. इन द सेम वे, जिस चीज की जो जगह होती है वहीं पर उस चीज को लगाना पड़ता है. Same happens with the sentence also. Suppose we write, is a Sita girl good? कोई मीनिंग आपको समझ में आ रही है? अगर मैं कहूँ बेटा is a Sita girl good, आपको कुछ नहीं समझ में आया, पता नहीं मैम ने क्या कह दिया. But if I say Sita is a good girl, आपको तुरंत समझ में आ गया. You immediately understand what ma'am is saying, that Sita is a good girl. She is talking about Sita, who is a good girl. So what is a sentence? Sentence is a group of words making complete sense. Complete sense means कोई meaning निकलता हो जिसका, having a proper meaning. That is called a sentence. Now we will have some examples. Raju lives in a big house. This is a sentence. Yes, it is a sentence because it is in a proper order. Raju lives in a big house. It is in proper order. Grass, cow, green, eats. No, it does not make any sense. कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका. We have to arrange the words. हमको words arrange करने पड़ेंगे. अगर हम arrange करें, cow eats green grass, yes, then it becomes a sentence. और हमें सी को कैपिटल करना होगा बिकॉज कोई भी सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. एनी सेंटेंस यू आर गोइंग टू राइट, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. दिस इज माई पेंसिल. यस, इट इज अ सेंटेंस बिकॉज इट हैज अ क्लियर मीनिंग, इट हैज अ प्रॉपर मीनिंग, इट इज मेकिंग सेंस. पता चल रहा है कि वॉट I am telling. This is my pen. Now, अच्छा, more sentences are there.
Where do you live? Where do you live? Now this is also a proper sentence because it is asking us where do you live and the words are in proper order. Words अपनी अपनी जगह पर ठीक से लगे हुए हैं. Then number 5 is book I knew have. No, एक तो ये सेंटेंस स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये तो गलत है बिल्कुल. Book I knew have. No, it's not a proper sentence. We will cut this. It is not a proper sentence. I have new books. मेरे पास नई किताबें हैं. I have new books. Then this will become a sentence, not before that. Then there are some sentences which end with a full stop, some end with question mark, and some with an exclamation mark. Right? Now we will discuss about these sentences, how they behave. Now I am telling that there are sentences which end with a full stop. Any sentence. I am going. You are a girl. He is a good boy. Lucknow is a city. They all start with a capital letter and end with a full stop. They end with a full stop. So, what are these sentences? These are called statement sentences. ये sentences हमें कुछ बताते हैं. They tell us something. They give us information about something. It tells us something about a thing, a person, a place, किसी भी चीज के बारे में. I am going. ये सेंटेंस हमें क्या बताता है? मेरे बारे में बता रहा है that I am going. You are a girl. ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? उस गर्ल के बारे में बता रहा है that she is a girl. He is a good boy. What kind of a boy is he? He is a good boy. ये he के बारे में हमें बता रहा है कि he किस तरह का लड़का है. He is telling something. Lucknow is a city. Lucknow is a big city. Lucknow is a city. What is Lucknow? Lucknow is a city. ये सेंटेंस हमें लखनऊ के बारे में बता रहा है. Any information which is given to us starts with a capital letter and ends with a full stop. So this was the first kind of sentence. Then there is a sentence, some sentences are there which end with a question mark. ठीक? अब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन मार्क लगाना है या ये कौन सा सेंटेंस है? सपोज अगर हमने लिखा इज दिस अ बुक, इज दिस अ बुक, जैसे मैंने बोला दिस इज नॉट द राइट टोन टू आस्क समथिंग. जहां भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है इट डिनोट्स दैट दिस सेंटेंस इज आस्किंग अबाउट समथिंग. कुछ पूछ रहा है ये सेंटेंस. इज दिस अ बुक? क्या ये एक किताब है? आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जा रही हो? वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो एक हमारा बोलने का तरीका चेंज होता है whenever we see question mark. हमेशा अपना तरीका, अपना टोन चेंज करिएगा. जब आप इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश रीडर जो आपकी न्यू बुक आई है, कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश बुक में, then there should be change in the tone. आप जहाँ जहाँ पर फुल स्टॉप देखते हैं, जहाँ कॉमा देखते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क देखते हैं, there should be a change in your voice. आपकी आवाज़ में चेंज होना चाहिए. तभी हमें पता चलता है कि what are you reading. इसी के लिए टीचर्स आपकी कहती हैं कि रीड करिए, रीड करिए, रीड द चैप्टर, रीड द चैप्टर. सो रीडिंग इज मस्ट. ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस. पहला सेंटेंस कौन सा था? जो फुल स्टॉप से एंड हो रहा था. नाउ सेकेंड किस तरह का सेंटेंस है? इट्स अ क्वेश्चन सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है और हमसे कुछ पूछता है. ठीक. देन कम्स द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस जिसमें हम कौन सा मार्क यूज करते हैं? वी यूज दिस मार्क. इस तरह का निशान हम यूज करते हैं. वी यूज दिस काइंड ऑफ मार्क. दिस इज कॉल्ड exclamation mark. This is called
exclamation mark. This exclamation mark हमें क्या बताता है? It shows feelings. It shows feelings. ये हमारी feelings को बताता है. Like, I'm giving an example. अगर मम्मी ने सुबह सुबह, आपको पता नहीं है, you are still sleeping, मम्मी ने कहा कि बेटा आइए नाश्ता रेडी है, एंड यू कम टू द टेबल एंड सी मैगी. मैगी सब बच्चों को पसंद है. आपको मैगी देख के क्या फीलिंग आएगी? अरे वाह, आज मैगी बनी है, वाह, है ना? यही फीलिंग आएगी ना, वाह मम्मी मैगी. आप इसी तरह बोलते हैं ना कोई भी अच्छी चीज देख करके, वाह. तो ये जो वाह सेंटेंस, या हिंदी में वाह निकला, वाह मम्मी मैगी, मजा, है ना? तो दीज वर्ड्स, दीज शो आर फीलिंग. ये हमारे अंदर की फीलिंग बताते हैं. तो ऐसा जो भी वर्ड हमारे अंदर की फीलिंग बताए, हमारी उदासी को बताए, हमारी खुशी को बताए, तो दोज काइंड ऑफ, हमारे डर को बताए, अरे बाबा, है ना, अंधेरा है, तो दीज वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड. और इन वर्ड्स के सामने हम कौन सा मार्क लगाते हैं? वी पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क. अगर कोई सेंटेंस हमें इस तरह का फीलिंग्स वाला दिखाई दे, तो वी विल पुट अ exclamatory mark in front of that word, that specific word. Wow, it's a nice pencil. तो wow word से हमें खुशी पता चली, हमने wow के आगे exclamatory mark put किया. हुर्रा, we won the match. अरे वाह, मैच जीत गए. तो हुर्रा, ये वर्ड हमारी खुशी को दिखाता है. Then we will put an exclamatory mark in front of this, and then when the sentence end, we will put the full stop. Oh no, we lost the game. अरे नहीं, हम मैच हार गए. Oh no. तो this oh no word, this expresses our sadness. When we are sad, we say this, and then we are putting exclamatory mark in front of this word. So there are these three kind of sentences which we will study about. We'll do the exercise related to this. आपको इतना समझ में आया या नहीं आया? You are not sitting in front of me. सामने तो बैठे नहीं हैं. How will I understand कि आपको समझ में आया या नहीं? जिस तरह से हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं, टीचर्स आपको वीडियोस भेज रहे हैं, उसी तरह आपको भी हम एक क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, और आपको भी ओरली उसका वीडियो बनाकर आप आंसर करते हुए हमें दिखने चाहिए. फिर हम चैट बॉक्स खोलेंगे अपना व्हाट्सएप का, एंड देन यू ऑल विल हैव टू सेंड 2 minutes 1 minute वीडियोस ऑन व्हाट्सएप. आपकी मम्मी को बता देंगे, आपके फादर जान जाएंगे, एंड यू विल हैव टू सेंड वीडियोस, जिससे हमें आपका टेस्ट लेने में आसानी हो. नाउ we will do the exercise. Now we'll have to change these sentences into proper sentences. Raj is my best friend. ये सेंटेंस, हमने जब इस सेंटेंस को पढ़ा, what do we feel? ये हमें कुछ बता रहा है, राज के बारे में बता रहा है, that Raj is my best friend. तो इस सेंटेंस में गलती कहाँ पर है? गलती है R is small. All the sentences begin with capital letters. So we will change this R into capital R. We will copy down the sentence, Raj is my best friend, and then we will put a full stop, because this sentence is a simple sentence which is telling something. ठीक है? I go to school every day. This is also the same simple sentence. I go to school every day. या आप बता रहे हो अपने बारे में कि आप क्या करते हो डेली. I go to school every day. In this also you will have to change this I. गलती क्या है? I is written with small. यहाँ पर क्या I होना चाहिए? Capital I. Capital I, go to school every day, and then a simple full stop. My mother cooks tasty food. This is also a simple sentence. M capital, mother cooks tasty food, and in the end you will put a full stop. Now, oh no, we lost the match. Lost means हार जाना. अब हार जाने पर, मैच हार जाने पर आप लोग क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं ना.
तो ओह नो, द्विवेदी सर आपको मैच खिलाते हैं, आप हार जाते हैं तो क्या करते हैं? अरे सर, सो ओह नो, इसके लिए वी विल राइट ओह नो, ओ विद कैपिटल, and then we will put the exclamatory sign. We lost the match, we will write, and at the end we'll put the full stop. Now, how are you? How are you? ये सेंटेंस हमसे कुछ पूछ रहा है, हम कैसे हैं हमसे पूछ रहा है. हाउ आर यू? तो वी विल change H into capital, and then at the end we will put the question mark. We will put the question mark to end the sentence. Then now we will be doing the matching. Children are playing with column A and column B. Children are playing. There is a book. The old man is, and how. On the table. Are you? In the park. Crossing the road. Children are playing. Where? In the park. There is a book. Where? On the table. The old man is crossing the road. How are you? Question mark is there. How are you? Now, I've already done these questions, but even then it's very easy. You can do it yourself also. Father home, my is not at. This is the jumbled sentence. You'll have to arrange the sentences into proper order. Sensible sentence banana hai. My father is not at home. This is the example which is done. Now, big my is house very. इसको कैसे अरेंज करेंगे? बिग माई इज हाउस वेरी. कहाँ से शुरू करेंगे? माई हाउस. एम कैपिटल करेंगे and then we will write my house is very big. In the same way, I have put numbers. First you try it to do, then see the numbers. ईमानदारी से करेंगे. नंबर्स को हाइड कर देंगे. फर्स्ट अपने आप ट्राई करेंगे, देन फॉलो द नंबर्स विच आई हैव गिवन. याद रखेंगे कि सेंटेंस जब शुरू करेंगे यू विल हैव टू मेक दैट लेटर कैपिटल. उस लेटर को कैपिटल लेटर में लिखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल पुट अ फुल स्टॉप. एक आपको फुल स्टॉप लगाना है. पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस. I saw an dash in the zoo. अब एन आपके लिए एक हिंट का काम कर रहा है. ये एक क्लू है, आपको मिल रही है एक क्लू. बहुत इजी. जहां पर भी एन लगा होता है हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले वर्ड्स हम यूज करते हैं. तो इस बॉक्स में आप देखिए कहीं पर ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला वर्ड है? Yes, there is elephant. I saw an elephant in the zoo. Neha dash on the bench. What do we do on the bench? हम bench पर क्या करते हैं? We sit on the bench. अब यहाँ देखिए कोई sit वाला word है? Make, holiday, scene, crying, June, sky, elephant, blue, waters, sit. ये देखिए. Neha sits on the bench. Okay. Try to understand the meaning of the sentence and do it yourself. छोटी सी क्लास से जब आप खुद इंटरेस्ट लेंगे, आप खुद करना चाहेंगे कि लेट मी डू इट, आप अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि मैं करके देखती हूँ, मैं करके देखता हूँ, अगर गलत होगा तब आप हमको बताइएगा. तो दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट. कोशिश करिए, then only you will learn. जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे you will learn. ये मैं सभी छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि try to do it yourself. The moon is shining in the dash. Now moon कहाँ शाइन करता है? सोचिए. स्काई में शाइन करता है. देखिए यहाँ पर बॉक्स में कहीं स्काई है? Yes, there is sky. The moon is shining in the sky. The gardener. Who is the gardener? A person who looks after the garden.
जो गार्डन की देखभाल करता है। नाउ द गार्डनर डैश द प्लांट्स एवरी डे। हम एवरी डे प्लांट्स को क्या करते हैं? आपके घर पे भी छोटे छोटे पेड़ गमलों में लगे होंगे, तो मम्मी डेली क्या करती हैं पेड़ों में? वाटर, यस, शी पुट्स वाटर इन द प्लांट्स। तो यहाँ पर देखिए गार्डनर भी वही करता है। देखिए वाटर कहीं है, लेट मी सी, यस, सिट्स, वाटर्स। द गार्डनर waters the plants every day. In this way, ये 5 sentences मैंने आपको बता दिए. There are more sentences यहाँ दिए हुए हैं. Try to do this yourself. ठीक है? Fill the sentences. His favorite color is. There must be a color word. कोई color word होगा यहाँ पर. बैक साइड में देखिए कोई कलर वर्ड है. Yes, there is a color word. Blue. His favorite color is blue. July comes after June. The baby is dash loudly. Baby बहुत जोर जोर से क्या कर रहा है? Sits, waters हो गया है. Blue, elephant we have chosen. Sky, June हो गया है. The baby is crying. Yes, the baby is crying loudly. 4 and 4 dash 8. 4 and 4 मिलकर क्या बनता है? बनाते हैं 4 and 4 dash 8. 4 and 4 make 8. 4 plus 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? It will become 8. Sunday is a, this is very simple. Sunday is a holiday है क्या? Yes, there is holiday. Sunday is a holiday. Then what else is there? The dash gives us heat and light. ये तो आपने SST में भी पढ़ा है. It's very easy. The sun gives us heat and light. So the chapter is finished over here. जितनी बार भी आपको समझ में नहीं आए, रिपीट करिएगा वीडियो and see it, watch it properly. और अगर कुछ नहीं समझ में आता है, just WhatsApp on the teacher's number. So for now, I'll be sending more videos. SST और इंग्लिश में भी और वीडियोस आपके आते रहेंगे. जितने चैप्टर्स आपको दिए जा चुके हैं, कराए जा चुके हैं, उनका टीचर्स खुद अपने आप बना करके वीडियोस भेजेंगी. थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा, बिकॉज अभी पता नहीं छुट्टियां कितने दिन चलेंगी. इस तरह से पढ़ना तो है ना, आगे बढ़ना है. ओके, एंड थैंक यू पेरेंट्स ऑल्सो. थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन.